میرے عزیزوں، پیدا بے شک خداوند یسوع مسیح بیت الحم میں ہوا، لیکن اس کا وجود دنیا سے پہلے تھا۔ یسایہ نبی نے 750 سال پہلے یہ پروفیسی کی تھی کہ ایک کمواری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ اس کے بعد بہت سے نبیوں نے پیدائش سے شروع کر لیں۔ آپ پیدائش میں لکھا ہے کہ وہ عورت کی نسل ہوگا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی۔ جب شیطان سے بات ہوئی تو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ ایک شخص آئے گا جو عورت کی نسل سے ہوگا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اژدہا سے کہا، سام سے کہا، ابلیس سے کہا گیا تھا۔ پھر میرے عزیزوں، میکا نبی کی معرفت پیشنگوئی کی گئی۔ آئیے میرے ساتھ خدا کا کلام کو کھولیے، خدا کا کلام پڑھتے ہیں تاکہ خدا ہمیں ساتھ ساتھ پڑھنے سے برکت بھی ملتی جائے گی۔ میکا نبی کا صحیفہ اور اس کا 5 باب، نکالے میرے ساتھ میکا کا صحیفہ، اس کا 5 باب، اس کی 2 آیات۔ یہ 5 باب اس کی 2 آیات جی لکھا ہے، لیکن اے بیت الحم، آگے کیا لکھا ہے؟ افراتا۔ اچھا، اس لفظ کے معنی بتا سکتا ہے کیا ہے یہ افراتا؟ بڑا پورا، بھرپور۔ ٹھیک ہے، اس کے بھی ہم دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، اے بیت الحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے۔ یہ چھوٹا ہے، یہ جتنے بھی شہر ہیں ان سے کیا ہے؟ سب سے چھوٹا ہے، لیکن لکھا ہے چھوٹا ہے تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا کیا ہوگا؟ بادشاہ ہوگا، حاکم ہوگا۔ یہ 500 سال پہلے، کتنے سال؟ 500 یہ پہلے یہ بھوشوانی کی ہے، اس نے پروفیسی کی ہے۔ سمجھ آئے گی بھوشوانی کی؟ بچے سمجھ آئے؟ 500 سال پہلے یہ بتا دیا۔ بے شک خدا یسوع مسیح بیت الحم میں پیدا ہوا ہے، لیکن یہ جو بادشاہ ہے خداوند نے اس کے دل کو پکڑا، اس کو مولڈ کیا۔ یہ اپنی اکانومی کے چکر میں لگا ہوا ہے، ادھر خدا اپنا کام کر رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ دنیا میں جو ہے نا مردم شماری کرواتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرے لوگ کتنے ہیں، تاکہ وہ ٹیکسز لینا چاہ رہا تھا یا کسی طریقے سے بھی وہ اس کو گنتی کرنا چاہ رہا تھا لوگوں کی کہ کتنے لوگ ہوں گے، تاکہ میں جو نا اپنا کام شروع کروں۔ لیکن ہمارا خدا آسمان پر تخت نشین ہے، وہ دیکھ رہا تھا اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ خدا کا کام ہو رہا ہے۔ مریم، یوسف کو خدا جو ہے وہ لے جا رہا ہے کہاں؟ بیت الحم۔ یہ بیت الحم میں نہیں رہتے تھے، یہ کہاں رہتے تھے؟ جی جی کہاں رہتے تھے؟ یہ ناصرت میں رہتے تھے، بیت الحم میں نہیں رہتے تھے۔ لیکن انہوں نے نام لکھوانے کے لیے کہاں جانا تھا؟ بیت الحم۔ اور بیت الحم کے معنی کیا ہے؟ بیت کہتے ہیں گھر کو، بیت کس کو کہتے ہیں؟ لحم کہتے ہیں بریڈ کو، لحم کس کو کہتے ہیں؟ روٹی کا گھر۔ بیت الحم کے لفظی معنی ہے کیا ہے؟ روٹی کا گھر۔ اور یروشلم کے کیا معنی ہے؟ گھر جی، یروشلم کی کیا معنی ہے؟ سلامتی کا شہر، سلامتی کا شہر۔ یہ چیزیں ہمیں اس لیے سیکھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو، ان کے لغوی معنوں کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، پتہ نہیں کیا ڈسکشن ہوئی ہے یوسف کی اور مریم کی، اور جب وہ وہاں سے چلے ہیں پتہ نہیں کس طریقے سے مریم کہتی ہوگی کہ یوسف میری حالت ایسی ہے کہ میں اتنا، پتہ کتنا سفر ہے؟
25 किलोमीटर का सफर है। ये मशरक में है। नासरत किस तरह, वो नासरत कहाँ है? बैतलहम से मशरक की तरफ 125 किलोमीटर। उस वक्त गाड़ियां नहीं थी, मीडिया भी नहीं था, टीवी भी नहीं थे। उस वक्त लोग पैदल सफर करते थे। मुसव्वरों ने दिखाया हमें कि वो मरियम को गधे पे बिठाया हुआ है और वो जा रहे हैं, और वहां कितनी मुश्किल से पहुंचे होंगे वो। इतना लंबा सफर करना बड़ी मुश्किल बात है। अगर वो वहां पहुंचे तो क्या हुआ, उनके लिए सराय में क्या है, जगह नहीं। पूछा उन्होंने कि कोई बेड मिल जाए, लेकिन उन्होंने कहा नो बेड, वहां जगह नहीं थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश कहाँ हुई? सराय में जी, सराय में। सराय में तो जगह ही नहीं थी सर। अच्छा, हाँ। लिखा है सराय में उनके लिए जगह ना तो लेकिन वही खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश कहाँ हुई? अस्तबल में, वो एनिमल्स जानवरों के बारे में। चरनी में पैदाइश नहीं हुई। चरने में नहीं। से आए। ये एक घर में पैदाइश हुई, लेकिन जो नबी की मार्फत लिखा हुआ है कि एक बच्चे को कपड़े में सफेद कपड़े में लपेट कर वो क्या करेंगे, चरनी में रखेंगे। चरनी पता है किसको कहते हैं? जहां जानवर चरते हैं, जहां चारा खाते हैं जानवर। एक लकड़ी की ऐसे बनाई होती है उन्होंने, उसमें जानवर क्या करते हैं, चारा खाते हैं। उसका नाम क्या है? चरनी। वो चरनी है। तो चरनी में रखा गया था उसको। और मेरे अजीजों, हमारा खुदा ऊपर से देख रहा है, खुदा काम कर रहा है। इस लड़का ऐसा हाकिम पैदा हुआ है, ऐसा अजीब मशीर कहा गया इसको, अजीब मशीर, खुदाए कादर, अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा। ऐसा बच्चा पैदा हुआ कि दुनिया हिल गई, पूरी दुनिया ही हिल गई। और उस वक्त जो हेरोदिस बादशाह था, जो हाकिम था उस वक्त का, उसके दिल को पकड़ लिया कि मेरे होते हुए कोई दूसरा बादशाह कैसे आ सकता है। लेकिन मेरे अजीजों, उसने जब ये सुना कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है, तो उसने 2-2 साल के बच्चों को मरवा दिया। और इसके बाद क्या होता है कि जब वो वहां पहुंचे तो फर्स्ट कैरल आसमान पर फरिश्ते आ गए। क्या हुआ? गाते हुए, खुशी करते हुए। और वहां कुछ लोग मैदान की तरफ भेड़ें चरा रहे थे, और उनको पहले खबर मिली कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए क्या हुआ है, एक मनज्जी पैदा हुआ है। ये सॉन्ग गाते हुए और खुदा की हमद करते हुए उनको क्या किया, मुबशराना काम किया। मुबशर थे, वो मैसेज दिया। और मजूसी जो थे वो भी अजीब ही लोग थे, उस वक्त के साइंटिस्ट लोग थे और पढ़े लिखे लोग थे, सितारों का इल्म रखते थे। मेरे अजीजों, उन्होंने भी खुदावंद, लिखा है कई मजूसी, हमें तो दिखाया गया है कि 3 मजूसी है, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कई मजूसी पूरब से। कहां से? मशरिक से। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 सिमतें हैं। मशरक, मगरब, जनूब, शमाल। सिंधी में उसमें हिंदी में कहते हैं पूरब, मशरक। वहां से वो चले। उनको जब ये पता चला तो उन्होंने क्या किया, खुदावंद के लिए तोहफे तैयार किए। तोहफे तैयार करके खुदावंद को नजर करने के लिए वहां से चले। कितना सफर उस वक्त पैदल किया होगा उन्होंने। और ये हमारे लिए खुदा ने सारा इंतजाम हमारे लिए किया था। और डैनियल इसके बारे में बताता है। डैनियल की किताब में से हम इसका हवाला देखेंगे, 7 बाब उसकी 13 और 14 आयत। और ये खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पहले ही ये उन्होंने प्रोफेसी कर दी कि एक शख्स आएगा जो इंसान को गुनाहों से निजात देगा, छुड़ाएगा। एक दफा तो खुदावंद ने खुद ही कह दिया, देखे दानियल के सहीफे में जो निकाल रहे हैं, वो उनमें से जो भी पहले निकाले पढ़ सकता है, उसका 7 बाब दानियल की किताब में से
13 और 14 आयत में लिखा है। 7 बाब की जी जी 13-14। जी जी मैं थोड़ा सा बैठ जाता हाँ। मैंने रात को रोया में देखा हूँ। जी और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदम जात की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमन अयाम तक पहुंचा। कदीम वाले अयाम तक पहुंचा। जी आगे। वो उसे उसके हजूर लाए और जी। सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई। उसे दी गई। ये ईसाया, ये दानिएल ने रोया में देखा है। रोया में देखता है कि एक शख्स कैसा आया जी, आदमजाद, एक दिस इज जीसस, ये हमारा खुदावंद है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। उसके बारे में दानिएल ने पहले ही बता दिया था कि एक शख्स आएगा जो हमें क्या करेगा, गुनाहों से निजात देगा, जो हमें गुनाहों से खलासी देगा। ये है क्रिसमस, ओरिजिनल क्रिसमस फीलिंग। ये है हमारा क्रिसमस जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। ये है हमारा यीशु जिसके बारे में पहले ही से नबियों ने बता दिया था। ये हमने क्रिसमस मनाया है, खुशी की है उस बच्चे की जो आज से 2025 साल पहले हमें बख्शा गया। लिखा है तुम्हारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और तुम्हें एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर है। वो अजीब मशीर है। अजीब मशीर किसको कहते हैं? अजीब मशवरे देने वाला। क्या मशवरा देता है? एक दौलतमंद को कहता है अपना सब कुछ बेच के गरीबों में बांट दे, तुझे आसमान पर क्या मिलेगा? परेशान होके चला गया। ये है अजीब अजीब मशीर, अजीब मशवरे देने वाला हमारा खुदा। हमें वो लड़का बख्शा गया है। हमें खुदा ने आजाद करने के लिए अपने बेटे को भेजा ताकि हम जो है ना आजाद, गुनाहों से आजाद। लिखा है जो कोई जिससे मगलूब है वो उसका गुलाम है। अगर इंसान गुनाह करता है तो वो गुनाह का गुलाम है। अगर इंसान कोई और काम ऐसा करता है या कोई नशा करता है तो वो नशे का गुलाम है। तो खुदावंद हमें गुलामी से आजाद करने के लिए, छुड़ाने के लिए उसने अपने बेटे को भेजा ताकि हम आजाद हो। आमीन। खुदा उस कलाम के वसीले से निजात।